Hello students, today we are going to discuss role of surgery in homeopathy. This is a question which is frequently asked by students to me कि मैडम वी आर होम्योपैथ्स, वी आर स्टडिंग होम्योपैथी, तो हमको सर्जरी क्यों पढ़ाया जाता है, या व्हाट इज़ द रोल ऑफ सर्जरी इन होम्योपैथी। हम सर्जरी पढ़कर क्या करेंगे, हमको ऑपरेशंस तो करना नहीं है, तो हम सर्जरी पढ़ क्यों रहे हैं। So we'll discuss today role of surgery in homeopathy. So before starting with this, let me tell you what is surgery. क्या है surgery? Surgery बोलते से सुनते से हमारा दिमाग में आता है कि operations. So actually surgery is a branch of medicine that employs operation in treatment of various disease conditions and injuries. इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा सर्जरी में ऑपरेशन ही होगा, बट बेसिकली सर्जरी में अपन यही पढ़ते हैं सुनते हैं कि ऑपरेशन ही करना है. सो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट एम्प्लॉयज और ट्रीट्स द पेशेंट बाय वेरियस ऑपरेटिव प्रोसीजर्स. Actually, and what is homeopathy? I think so everybody knows, so we don't have to discuss what is homeopathy. But homeopaths are primarily physicians and not surgeons. ये तो सभी को पता है कि we are physicians, we are treating different disease conditions, but we don't perform surgery. बहुत सारे ऐसे cases हैं, n number of cases which may not require surgery if they are treated properly in their primary stages with homeopathic medicines. Actually, homeopathy is not opposed to surgery. मैं क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज आर मास्टर डॉक्टर सैमुअल हैनीमन इन हिज ऑर्गेनॉन इन सेक्शन 186 he has advocated the help of mechanical aids in the form of, for example, reduction in cases of dislocations. जहाँ बोन डिसलोकेट हो गया है तो वहाँ उसको आपको रिड्यूस ही करना पड़ेगा. नो मेडिसिन कैन रिड्यूस द बोन बैक. So according to him also we require help of mechanical aids, like reduction or for example bandaging when there is a wide gap in the wounds, or if you want to create an opening in any cavity. So at that time he has advocated that we can take the help of surgery. This shows that Hahnemann wanted us to treat purely local conditions by मैकेनिकल हेल्प. जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि नहीं यहाँ मैकेनिकल हेल्प लगेगी ही लगेगी, एट दैट टाइम यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ सर्जरी. बट व्हाई वी आर स्टडिंग सर्जरी? वी शुड नो दैट what is the reason behind we homeopaths that we should study surgery. Number one is we will be able to differentiate a medical and a surgical case. सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये कि हमको पता चलना चाहिए कि भाई ये जो डिजीज़ कंडीशन पेशेंट लेकर आया है, वेदर इट इज़ अ मेडिसिनल डिजीज़ और अ सर्जिकल डिजीज़, सो दैट वी कैन ट्रीट इट अकॉर्डिंगली. अगर ऐसा लगता है कि नहीं इट इज़ अ प्योरली अ सर्जिकल केस, देन यू विल हैव टू रेफर दैट केस टू अ सर्जन. सेकेंडली, सिंपल सर्जिकल केसेस विच कैन बी ईजीली मैनेज्ड बाय होम्योपैथिक मेडिसिन. बहुत सारे ऐसे सर्जिकल कंडीशंस हैं which can be easily managed by homeopathy. For example, if you take a renal calculus or a ureteric calculus, ठीक है, स्टोन है, यूरेटर में स्टोन है, ब्लैडर में स्टोन है, किडनी में स्टोन है. Though these are surgical conditions, but these can be easily managed with homeopathic medicines. तो जब हम पढ़ते हैं तो हमको पता चलेगा कि हाँ we can manage this condition without surgery also. So for that reason also we should study surgery in detail so that we can know the symptoms, we can know our limitation. और ट्रीटमेंट चालू करने के बाद प्रोग्नोसिस ऑफ द पेशेंट, आप पेशेंट को ट्रीट करते जा रहे हैं पर आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप जो ट्रीट कर रहे हैं उसकी वजह से पेशेंट की कंडीशन ठीक हो रही है या पेशेंट की कंडीशन खराब हो रही है. सो दैट वी कैन कम टू नो इफ वी हैव स्टडीड दैट डिजीज प्रॉपरली. अगर डिजीज पढ़ा है तो हमको पता रहेगा कि इस डिजीज का कोर्स ऐसा है, ये आगे चल के ऐसे टर्न होती है, सो दैट वी कैन डिफरेंशिएट इट कि भाई हम जो ट्रीट कर रहे हैं वो क्योर की तरफ जा रहा है कि पेशेंट डिटोरिएट हो रहा है.
So for that also it is necessary that we should study surgery in detail. Now what is the scope of surgery in homeopathy? कब कब हमको ज़रूरत पड़ती है सर्जरी की इन होम्योपैथी? नंबर 1 इज to remove the disease part. To remove disease part. फॉर एग्जाम्पल अगर गैंग्रीन हो गया है और वो पार्ट टोटली खराब हो गया है, दैट पार्ट हैज बीन गैंग्रीनस, सो एट दैट टाइम वी हैव टू गो फॉर एम्प्यूटेशन. हमको वो पार्ट रिमूव करना ही पड़ेगा, बिना रिमूव किए पेशेंट ठीक नहीं हो सकता है. सो वी हैव टू गो फॉर सर्जरी. सो in this condition we require surgery. So number 1 is to remove the disease part. For example, you can take amputation, that is removal of that affected limb. Then for purpose of repair, for example, cleft lip and cleft palate. सुना ही होगा, एक मूवी भी आई थी स्माइल करके, जिसके अंदर की यहाँ पे गैप रहती है. क्लेफ्ट लिप मीन्स द लिप इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. अब ये एक कंजेनाइटल एनामली है. कंजेनाइटल एनामली मीन्स एनामली विच इज प्रेजेंट सिंस बर्थ. डेवलपमेंटल डिफेक्ट था और उसके वजह से ये एनामली हुई है. तो अब ये तो आप कोई मेडिसिन से इसको ठीक नहीं कर सकते. इट रिक्वायर्स रिपेयर, तो आपको सर्जरी करनी ही पड़ेगी. सो फॉर पर्पस ऑफ रिपेयर यू रिक्वायर सर्जरी. Then for purpose of procuring an artificial opening, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कई बार ऐसे ज़रूरत पड़ती है कि पेशेंट को सपोज ही सफरिंग फ्रॉम एनी मैलिग्नेंसी, सपोज फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक CA इसोफेगस. ओके, इन केस ऑफ CA इसोफेगस पेशेंट कुछ खा पी नहीं सकता है बिकॉज इसोफेगस नैरो हो जाता है या इसोफेगस में ग्रोथ रहती है, इसकी वजह से उसकी ओपनिंग कम हो जाती है. सो पेशेंट इज नॉट एबल टू टेक ओरली. तो आप क्या करना है, आपको गैस्ट्रोस्टॉमी करनी है. गैस्ट्रोस्टॉमी मीन्स आप एक होल करोगे इनटू द स्टमक, आप एक ट्यूब डाल दोगे और आर्टिफिशियली उसको थ्रू दैट, आर्टिफिशियली मीन्स थ्रू दैट ट्यूब यू आर गोइंग टू फीड द पेशेंट. सो फॉर पर्पस ऑफ प्रोक्यूरिंग एन आर्टिफिशियल ओपनिंग, सो द बेस्ट एग्जाम्पल आई हैव गिवन यू इज गैस्ट्रोस्टॉमी, जिसमें आपको फीडिंग के लिए लगेगा. सेकेंड इज सॉरी नॉट सेकेंड बट नेक्स्ट इज फॉर पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन. जैसे आपको कोई इंटरनल ऑर्गन देखना है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू विजुअलाइज द ब्लैडर, if you want to visualize the bladder you have to go for cystoscopy. It is a scope which is passed per urethra into the urinary bladder and you can visualize the interior of the bladder. तो ऐसे चीज़ों के लिए आपको सर्जन की ज़रूरत पड़ेगी to visualize the part, like sigmoidoscopy है. सिग्मॉइड कोलन को आपको ऑब्जर्व करना है, देखना है क्या प्रॉब्लम है, कोई ग्रोथ है क्या. और इफ यू वांट टू टेक अ बायोप्सी दैट टाइम आल्सो यू रिक्वायर हेल्प ऑफ अ सर्जन और सर्जरी इज इम्पॉर्टेंट. एंड फॉर सम एक्वायर्ड कंडीशंस, फॉर एग्जांपल जैसे कि ट्यूमर है, पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एनी ट्यूमर, आपको देखना है कि ये बिनाइन है कि ये मैलिग्नेंट है. फॉर दैट व्हाट यू रिक्वायर, यू हैव टू गो फॉर बायोप्सी. Biopsy is also done by surgeons, so you have to take the help of a surgeon. So these are the few conditions where there is role of surgery in homeopathy and we have to take help of surgery. Actually इसीलिए बार बार बोला जाता है कि surgery is neither allopathy nor homeopathy. It is totally a specialized branch and we can also take help of surgery, and that's why it's very important for us to study the basics of surgery. जितने भी टॉपिक सर्जरी में बताए गए हैं you have to study them in detail so that you can diagnose the disease, you can treat that disease condition, you can classify them into surgical and medicinal cases, you can come to know the prognosis of the patient, and that's why it is important for every homeopathic students to study these allied subjects. I am talking specially about surgery because I am a teacher of surgery and that's why I am stressing on my subject, but all these allied subjects are equally important for a homeopath. I think so. You got with our topic, that is role of surgery in homeopathy.
Okay, students. Thank you.